दीर्घश्वास सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी कार्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। Children, अपठित अवबोधनम. This is your first question in your annual and final exam. This is the first question which carries 10 marks. I already posted the image of this passage and you have to solve the questions by reading the passage carefully. There will be 4 questions on this passage. Question number 1, Ekapadena Uttarata, answer in one word, which carries half mark. Sub question, each and every sub question will carry half mark. 4 sub questions will be given here, and in this way this total question carries 2 marks. Then second question, based on this apathic avapodhan, it is purna vakya uttara, answer in full sentence. 2 questions will be given, every question carries 2 marks. In this way this question carries 4 marks. Then bhashik karyam, work of language, half mark for each sub question. 4 questions will be given. In this way this question carries 2 marks. Last but not the least, upari likhitasya anuchedasya samuchitam shirshakam likhatam. Write a suitable title for this paragraph. Generally, more than 30% student forget to write the answer of this question. They know the answer. Upari likhitasya anuchedasya samuchitam shirshakam, but they forget. So please remember this. Do not forget to write the title of the paragraph. It is compulsory. पैराग्राफ का, परिच्छेद का शीर्षक लिखना, ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क देने वाला है. अगर आप इसे भूल जाओगे तो सीधा सीधा आपके 2 मार्क कट जाएंगे. इसलिए कसम खाओ, आम्ही शपथ घेतो की हा जो प्रश्न आहे शीर्षक लिहिण्याचा, त्याचं उत्तर लिहिणार म्हणजे लिहिणारच. नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, अपठित अवबोधन, and how to score out of marks in this question. Please concentrate over here. This question is for standard 9 and standard 10 also. Okay? Here one passage is given. How to solve this question carefully and how to obtain maximum marks. There are some tips given by me. The tips are, you have to read the passage 1, 2, 3 times before reading the question. Before going toward the question, read the paragraph carefully thrice, 3 times, very very carefully, and then read the question and then try to find out the answer of the question. What generally students do, they read the question and then they try to find the answer from the passage. This is the wrong way. This is the wrong way. Please read the passage. There is no problem of time. संस्कृत के लिए समय की कोई समस्या नहीं है. आपका पेपर बहुत आसानी से दिए हुए वक्त के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है. तो पैसेज आपको रीड करना है 3 बार लगभग, और बड़े ध्यान से इसे पढ़ना है. देखो मैं इसे पढ़ता हूँ, कैसे पढ़ना है. संस्कृत भाषायाम आदर्श पुरुष रूपेण मर्यादा पुरुष रूपेण वा भगवतः श्रीरामस्य वर्णनम महाकवि महर्षि वाल्मीकिना स्वमहाकाव्ये अनर्घैः अक्षरैः चित्रितम्. नाटकेषु मुख्यतः महाकविः भासः प्रतिमानाटके अभिषेकनाटके च कृतवान्. ततो महाकविः भवभूतिः उत्तररामचरिते च मर्यादा पुरुषोत्तमम् अवर्णयत्. महाकाव्ये महाकविः कालिदासः रघुवंशे वर्णितवान्. ये महाकवयः नाटककाराः अस्य वर्णनं कुर्वन्ति ते सर्वे चरितम् अस्य अलौकिकं वर्णयन्ति. वयं भारतीयाः एव न सर्वेपि संसारिकाः जनाः पूजयन्ति महान्तं पुरुषम् एनम्. अस्य कारणात् विजयादशमी दीपावली च देशे अस्माकं मान्यते. In this way read this paragraph very slowly and carefully. I read it speedily, but you read very slowly, steadily, and try to find out the meaning first of all. What is the meaning of this passage? संस्कृत भाषायाम आदर्श पुरुष रूपेण मर्यादा पुरुष रूपेण वा भगवतः श्रीरामस्य वर्णनं महर्षि वाल्मीकिना स्वमहाकाव्ये अनर्घैः अक्षरैः चित्रितम्.
महर्षि वाल्मीकि जी ने श्री राम का वर्णन जो किया है अपने काव्य में, बड़े अनर्घमाए अमूल्य अक्षरों से प्रभु श्री राम का वर्णन इन्होंने किया है। संस्कृत भाषा में भगवान श्री राम की जो प्रतिमा है वो मर्यादा पुरुषोत्तम की है, आदर्श पुरुष की है, और यही प्रतिमा वर्णन करने का कार्य महर्षि वाल्मीकि जी ने किया है। वाल्मीकि जी के बारे में बहुत सी अफवाहें समाज में प्रसारित होती है कि वो पूर्वाश्रम में कोई डाकू चोर लुटेरे वगैरह थे, लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बहुत बड़े ज्ञानी महंत साधु थे और उन्होंने रामायण की जो रचना की है ये एक ही श्लोक में उन्होंने 24,000 श्लोक लिखे हैं। चतुर्विंशति शास्त्री संहिता ये रामायण का दूसरा नाम है। रामायण के लिए जो नाम अलग से प्रयुक्त या उपयुक्त किया जाता है, पौलस्त्य वध, यह भी रामायण का दूसरा नाम है। 24,000 श्लोक वाल्मीकि जी ने अनुष्टुप छंद में रामायण के लिखे हैं और उन सभी श्लोकों से इसका जो नाम बनता है रामायण का वो है चतुर्विंशति शास्त्री संहिता। इसके बाद में जो भी संस्कृत में नाटक बने हैं उनमें महाकवि जो भास है, इन्होंने 13 नाटक अलग अलग लिखे हैं। उन नाटकेषु मुख्यतः इसमें से जो प्रमुख 2 नाटक है प्रतिमा तथा अभिषेक, इन दोनों नाटकों में महर्षि व्यास ने राम का ही वर्णन मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में किया है। ततो महाकवि ही भवभूति ही। इनके बाद आते हैं महाकवि भवभूति जिन्होंने लिखा है उत्तर रामचरित, रावण वध। ये रामायण का एक पहला पार्ट जहाँ खत्म होता है पौलस्त्य वध, माने पुलस्त्य ऋषि का पुत्र रावण जिसका वध होने के बाद रामायण की कथा जो आगे बढ़ती है उसे उत्तर रामचरित कहा गया है और इसकी रचना महाकवि भवभूति ने की है। और इन्होंने इस उत्तर रामचरित में मर्यादा पुरुषोत्तम इमम अवर्णयत, इन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम का माने प्रभु श्री राम जी का वर्णन किया है। महाकाव्ये महाकवि ही कालिदास रघुवंशे वर्णितवान। महाकवि कालिदास को कहा गया है। कालिदास को कवि कुलगुरु भी कहते हैं, कवि कुल शिरोमणि भी कहते हैं। महाकवि कालिदास जी ने रघुवंश नाम के अपने महाकाव्य में राम का जो वंश है रघुवंश का वर्णन किया है। ये महाकवि है, जो महाकवि है, नाटककार है, इनका ही वर्णन करते हैं। वो वर्णन सर्वे चरितम अस्य अलौकिकम वर्णयन्ति, सभी ने श्री राम जी के चरित्र का वर्णन अलौकिक रूप में ही किया है, क्योंकि उनके चरित्र में कोई भी दाग या दोष किसी भी रचनाकार को दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। और इसीलिए हम सभी भारतीय, वयम सर्वे भारतीयाः, हम सभी सांसारिक लोग उन्हें ही पूजते हैं महान पुरुष के रूप में। और इन्हीं की वजह से विजयादशमी तथा दीपावली हमारे देश में मनाए जाते हैं। तो ये रहे पूरा पैराग्राफ, और इसके ऊपर के जो प्रश्न हैं इनके आंसर्स आपको यहाँ से ढूंढने हैं। सो ट्राई टू find out the answer. I will display the answer key. Okay, thank you. Read the passage once again and try to find out the answers.